Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 45 of unit number 5, that is design of engine component. In previous lecture we have gone through some theoretical concept of crankshaft, and in this video we are going to look into the design procedure of crankshaft and the bearing pressure and the stresses induced in this crankshaft. So let's get started. The first thing first, the design procedure of crankshaft. We have to follow some standard procedure for designing of this component. The step first is for this magnitude of various load. So first of all we have to find out the magnitude of various loads on the crankshaft. Obviously these various loads are in Newton or kilonewton or meganewton in their respective. Okay, so we have to find out the magnitude first. Then in next step we have to determine the distance between the supports and their positions with respect to the load. सो एक बार डिसाइड करने के बाद कि कितना मैग्नीट्यूड होगा आपके लोड्स का, उसके बाद आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आपका सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए. ओके, सो सेकंड स्टेप में आपको यही कहा गया है. सो यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स एंड देयर पोजीशंस with respect to the loads. So for the sake of simplicity and also for the safety, the shaft is to be considered supported at the centers of the bearings, and all of the forces and reactions to be acting at these points. तो आपके सिंप्लिसिटी के लिए इस डिज़ाइनिंग प्रोसेस में सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि शाफ्ट इज सपोर्टेड एट दी सेंटर्स ओनली. अगर आप क्या होगा, अगर आप आउटसाइड सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं या ओवरहैंग कंसिडर कर सकते हैं तो आपके न्यूमेरिकल जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा. ठीक है, तो जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आपका जो शाफ्ट है वो सेंटर सपोर्टेड है. सो ऑल्सो this distance between the supports depends on the length of the bearing, which in turn depends on the diameter of the shaft. So because of the allowable bearing pressure, so आपको distance between the supports को जो है लेंथ और डायमीटर है, लेंथ और डायमीटर दोनों डिपेंड करेंगे आपका बेयरिंग प्रेशर पर. ठीक है, इस सेंटर डिस्टेंस का लेंथ और डायमीटर आपका डिपेंड करेगा बेयरिंग प्रेशर पे, और इस लेंथ और डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए आपको फोर्थ स्टेप पर जाना पड़ेगा. सो इस फोर्थ स्टेप में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा थिकनेस और डायमीटर. ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ द चिक्स और वेब्स is assumed to be 0.4 times ds to 0.6 times ds, where ds is the diameter of the shaft. Okay, d suffix s, which is denoted as a diameter of shaft. Okay, so it may be also taken as 0.22 times capital D to 0.23 times capital D, where capital D is the diameter of the bore of the cylinder in millimeter. So now in the final steps we have to calculate the distance between the supports. Okay, so these basics 5 steps you have to follow for the designing of this crankshaft. आने वाले समय में या फिर आने वाले लेक्चर्स में जब हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएंगी. ठीक है, सो टिल दैट आपको यही ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोसीजर फॉर क्रैंकशाफ्ट क्या होती है. सो दिस इज द प्रोसीजर.
Now finally we have to find out the bearing pressure and the stress in the crankshafts. Okay, so देख लेते हैं कि bearing pressures क्या होता है और stresses induce कैसे होते हैं crankshaft में. The bearing pressures are very important in the designing of crankshaft. The maximum permissible bearing pressure depends upon the maximum gas pressure, general velocity, amount and method of lubrication and change of direction of bearing pressure. आपका ये जो बेरिंग प्रेशर होता है, जो भी प्रेशर आने वाला है आपका क्रैंकशाफ्ट पे, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहली बात तो गैस प्रेशर पे, ठीक है, जैसे कि पिस्टन पे आपके कितना लोड आ रहा है उस पर डिज़ाइन सबसे पहले बेस्ड करेगा. उसके बाद बेस होगा जनरल के वेलोसिटी पर. उसके बाद आपका इफेक्ट पड़ता है अमाउंट और मेथड का, लुब्रिकेशन का, एंड फाइनली द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बेरिंग प्रेशर का. सो इन सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपके बेरिंग प्रेशर्स पर. सो दिस बेरिंग प्रेशर्स आर वेरी वेरी crucial point for the design of crankshaft. So the following two types of stresses are induced in this crankshaft. The first one is bending stress and the another one is shearing stress due to torsional amount of the shaft. देखिए बात क्लियर है कि जैसे ही आपका वर्टिकल लोड आता है शाफ्ट पर, ऑब्वियसली वो बेंड होगा, तो सबसे पहले तो उस पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा. दूसरी बात, आपका शाफ्ट कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है तो ऑब्वियसली उस पर टॉर्शनल मोमेंट भी आएंगे. ठीक है, तो ये दो स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं आपके क्रैंकशाफ्ट पे. पहला है बेंडिंग स्ट्रेसेस, दूसरा है शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू द टॉर्शनल मोमेंट ऑफ द शाफ्ट. So for most crankshaft failures are caused by the progressive fracture due to the repetitive bending or reverse torsional stress. ठीक है, सबसे ज़्यादा फेल्योर के कॉजेस क्या होते हैं आपके क्रैंकशाफ्ट के. पहला होता है रिपीटेटिव बेंडिंग मोमेंट और दूसरा होता है रिवर्स टॉर्शनल स्ट्रेस. ठीक है, रिवर्स टॉर्शनल स्ट्रेस मतलब कभी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का इफेक्ट होगा, कभी टेंशनल टॉर्शन का इफेक्ट होगा. ठीक है, देन thus the crankshaft is under fatigue loading and therefore its design should be based upon the endurance limit. Since the failure of a crankshaft is likely to cause a serious engine destruction and neither all the forces nor all the stresses acting on the crankshaft can be determined accurately. ठीक है, सभी का जो ये फेल्योर के जो कॉजेस होते हैं क्रैंकशाफ्ट पर, इसे फाइंड आउट करना एक सीरियस प्रॉब्लम होता है. ठीक है, सीरियस कॉज होता है जिससे कि फोर्सेस और स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने में काफ़ी क्रिटिकल आ जाता है. ये काफ़ी एक्यूरेटली ये फाइंड आउट नहीं होता है. सो देयरफॉर आपको क्या करना पड़ता है, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करनी पड़ती है. जैसे कि मैं टू व्हीलर को डिज़ाइन कर रहा हूँ टू सीटर के लिए, तो मान लीजिए उस पर आप तीसरा, चौथा, पांचवा आपके फ्रेंड्स को बैठा लेते हो. ठीक है, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ट्वाइस. अगर आप दो के जगह चार लोग बैठा रहे हो फिर भी आपका बाइक ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब आपने उसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो डबल पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर चल सके. तो उसी प्रकार क्रैंकशाफ्ट डिज़ाइन करते समय आपको ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल जाता है कि एग्जैक्टली कितनी प्रेशर्स पड़ रहा है, कितना स्ट्रेसेस आ रहा है, कितना लोड आ रहा है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब सेफ्टी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेंज जो है 3 से 4 तक रखना पड़ता है. ठीक है, एंड विच में वेरी फ्रॉम द endurance limit. Okay, so these are the some theoretical concept again related to crankshaft, that is bearing pressure and the stresses in the crankshaft. Okay, in next lecture we will go through the some more numerical concepts of crankshafts. So thank you for your attention, keep practicing.